مملکت کا پاسباں ہے محمد علی جناح بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 148واں یوم پیدائش ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ بابائے قوم کے یوم ولادت پر ملک بھر میں آج عام تعطیل، شہر شہر تقریبات اور سیمینارز کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ بانی پاکستان کی انتھک جدوجہد، دانشمندی اور قیادت کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قیام عمل میں آیا۔ قائد اعظم نے سیاست کا آغاز انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت سے کیا۔ 1913 میں محمد علی جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، الگ مسلم ریاست کے لیے برِ صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قائد اعظم کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔ قائد اعظم نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا۔ ان کے ویژن، عزم اور استحکام سے مسلمان برِ صغیر کے لیے آزاد وطن ممکن ہوا۔ قائد اعظم نے پاکستان کا مقدمہ نہایت وضاحت کے ساتھ پیش کیا۔ قائد ایک جمہوری اور خود کفیل پاکستان کا ویژن رکھتے تھے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام: ہم قائد کی بصیرت، غیر متزلزل ہمت اور بے مثال عزم کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے وہ کر دکھایا جس کو بہت سے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ قائد کی انتھک محنت کی بدولت ہمارا وطن پاکستان مرز وجود میں آیا۔ قائد کے جدوجہد کا سفر یقین کی طاقت کے ذریعے جوانوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام: چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف سروسز چیفز اور افواج پاکستان کا بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ مسلح افواج قائد اعظم کے لازوال ویژن اور بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بابائے قوم نے انتھک کوششوں سے خود مختار اور آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ آج قائد کے رہنما اصولوں، ایمان، اتحاد اور تنظیم پر قائمند رہنے کا عزم کرتے ہیں۔ ISPR۔ جو ہے پاکستان کا نیوکلیر، نہ یہ میرا ہے، نہ یہ کابینہ کے آنریبل ممبرز کا ہے، یہ پاکستان کے 24 کروڑ یہ عوام کا یہ پروگرام ہے۔ اس کے اوپر کوئی قطعاً کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اٹ از جسٹ ڈیٹرنس، نتھنگ ایلس۔ اٹس اے پروگرام ٹو ڈیفینڈ پاکستان، نیشنل ڈیفینس کمپلیکس اور دوسری جو اینٹیز ہیں ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ایٹمی پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام 24 کروڑ عوام کا ہے۔ ملک کا دفاع نظام جارحیت کے لیے نہیں، دفاع کے لیے ہے۔ نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دیگر اداروں پر پابندی کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان کے خلاف مضمون سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چند ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کرم میں جب قتل و غارت گری ہو رہی تھی اس وقت اسلام آباد پر چڑھائی کی جا رہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو: یقین ہے تحریک انصاف سے بات چیت میں ایسا حل نکلے گا جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ مذاکرات کا مقصد یہی ہے کہ ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں، کسی کی نیت پر شک نہیں۔ امید ہے دونوں کمیٹیاں ملک کے مفاد میں بہترین فیصلے کریں گی۔ وزیر اعظم پرعزم۔ ہماری پہلی میٹنگ بھی ہو گئی ہے PTI کے ساتھ۔ قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات کے تابع کریں۔ میں کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا۔ مجھے پوری امید ہے کہ دونوں پارٹیاں پاکستان کے بہترین مفاد میں پاکستان کو امن اور استحکام دیں گی۔ مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے حوالے سے پر امید ہوں، سمجھتے ہیں مذاکرات جلد از جلد ختم ہوں۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا پہلا اجلاس ابتدائی اور غیر رسمی تھا۔ مذاکرات کے اگلے دور میں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ بانی PTI کو مذاکرات پر بریفنگ دی ہے۔ بانی PTI نے مذاکرات ٹائم فریم میں مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سارے مسائل کا حل ضرور نکل آئے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سیاست میں حصہ لیا یا لے رہے ہیں، سب کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ بالکل کلیئر ہے نا، جب ایک کا ہوگا تو سب کا ہوگا۔ مجھے تو یہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے بھی خبر کھود رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے مقدمے، لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ تبدیلی آنے والی ہے۔ 1-1.5 مہینے سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ خان صاحب رہا ہوں گے، عمران خان صاحب کو رہا کر کے جناب ہاؤس اریسٹ میں کر دیں۔ یہ میں تو مشورہ دوں گا خان صاحب کو کہ یہ تجویز پر نہیں عمل کریں۔
जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया सबका ट्रायल होना चाहिए। एक का मिलिट्री ट्रायल होगा तो सबका होना चाहिए। ये अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं। बातचीत साहब इक़्तिदार से होती है, साहब हुकूमत से नहीं जो मुक़्तदिर हों। चाहते हैं मुल्क में सालिसी हो, मामलात का हल निकले। मुज़ाकरात में जिसे होना चाहिए था वो ज़मानतें कराने में मसरूफ़ था। हमारा सारा वक्त मुक़दमात पे ज़मानतें कराने में लग जाता है। तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं। बानी को दूर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह किया गया। ज़्यादा लंबी बात नहीं, 1.5-2 माह में बानी PTI रहा होंगे। बानी को मशवरा दूंगा कि हाउस अरेस्ट वाली तजवीज़ पर अमल ना करें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया टॉक। EU या UK या US अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई तशवीश ज़ाहिर कर रहा है, तो that's certainly in accordance with the law and the constitution, because the law of the land and the constitution provides and permits कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो। इसी तरह आपने इमरान खान साहब का अपने इंट्रो में भी कहा कि इमरान खान साहब के अपने दौर हुकूमत में मिलिट्री जो ट्रायल हुए या मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हुए जिन लोगों के, वो आपको भी पता है। उस टाइम क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स थे वो हलाल थे? बानी PTI के दौर में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल हुए, अब मिलिट्री ट्रायल को हराम करार दिया जा रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 2 जनवरी को PTI मुज़ाकराती कमेटी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का वाज़ेह बयान आ चुका। GSP+ के हवाले से दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। इंतजार की घड़ियां खत्म, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से कराची में शुरू होगी, 9 मार्च तक जारी रहेगी। मैचेस पार्टनरशिप फार्मूले के तहत पाकिस्तान और दुबई में होंगे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूट्रल वेन्यू होगा। 8 मुल्कों के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी में होंगे। पहला मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में 19 फरवरी को होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो इवेंट का फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। अब भारत के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। भारत के 3 लीग मैचेस, एक सेमीफाइनल और फाइनल UAE में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को UAE, दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। 5 मार्च पहले सेमीफाइनल और 6 मार्च दूसरे सेमीफाइनल्स के रिजर्व डेज के लिए मुख्तस। पाकिस्तान भी भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें 2 ग्रुप में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड का ग्रुप बी। तमाम मैचेस डे एंड नाइट होंगे। पाकिस्तान तमाम टीमों को खुश आमदीद कहने और मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। चेयरमैन PCB का चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होने पर पैगाम। ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और परस्तारों के लिए यादगार होगा। पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी एक संगे मील है। बहुत खुशी है हम एक ऐसे मुआहदे पर पहुंचे जो बराबरी की बुनियाद पर है। तमाम आज़िज़ रुकन मुल्कों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया। तमाम अरकान की काविशें बहुत कीमती हैं जो क्रिकेट के इंटरेस्ट में हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट्स की रजिस्ट्रेशन शुरू। शहरी ICC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की जानिब अहम कदम। कराची के साहल पर 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल पहुंच गई। ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। इंटरनेट स्पीड तेज़ होगी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की रफ्तार बढ़ेगी। ट्रांसवर्ल्ड के तहत फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से केबल बिछाने का काम जारी। हर शहरी का बुनियादी हक है कि उनको इस डिजिटल एज में इंटरनेट ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट उनको मिले। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। उनको क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता।
हाई स्पीड इंटरनेट नौजवानों का हक है। अब मोटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। पुराना नोकिया मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को नौजवानों के हक का क्या पता। इस्लामाबाद में पुराने बुजुर्ग को व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गेमिंग का क्या पता। इस्लामाबाद में जो बुजुर्ग बैठा है उसे समझाएंगे। डेटा प्राइवेसी के हक की हिफाजत भी यकीनी बनाना होगी। जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जदोजहद करना होगी। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जदोजहद करना होगी। बिलावल भुट्टो का IBA यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। अफसोस वफाकी बजट में मौसमियाती तब्दीली के खतरे से निपटने के लिए कोई प्लानिंग नहीं। 70 साल के बाबू बैठकर बजट पास करवाते हैं। हमने मौसमियाती तब्दीली के खतरे को समझना और मुकाबला करना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहा है। नया वफाकी PSDP अवाम के मुस्तकबिल को सामने रख कर बनाना होगा। बिलावल भुट्टो की तजवीज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस के रंग, घरों के बाहर क्रिसमस ट्री की रंगीनियां, चर्चेस की भी ताज़ीन और आराइश। सेंटा क्लॉज खुशियां बखेरने के लिए सफर पर निकल पड़े। हॉस्पिटल में बच्चों को तोहफा देने का अनोखा अंदाज। टेक्सास में ड्रोन से बने सेंटा क्लॉज तवज्जो का मरकज बन गए। रोम में बाजारों और शाहराहों को रोशनियों से सजा दिया गया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो में और मेक्सिको समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में तकरीबात। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्ला अफवाज की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब का क्रिसमस के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। तमाम गिरजाघरों की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने और पुलिस नफरी बढ़ाने की हिदायत। ज़िला इंतजामिया और पुलिस अफसरान क्रिसमस इंतजाम की निगरानी खुद करें। मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। गिरजाघरों के इर्द गिर्द सफाई के लिए मुतल्लिका महकमे जिम्मेदारी अदा करें। मरियम नवाज की हिदायत। पुलिस मजाक सेंटर में मसीही बरादरी के साथ केक काट कर इजहार यकजहती का फैसला। सस्ते बाजारों में मसीही बरादरी के लिए खसूसी डिस्काउंट देने की हिदायत। वज़ीर आला का क्रिसमस तकरीबात के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। धुंध में रास्ते गुम, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 रिश्कई से बुरहान तक बंद। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 गुजरात से मुल्तान तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फोक लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। इजरायली फोर्सेस की फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। पनाहगाहों, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, 51 जख्मी हो गए। कमाल अदवान हॉस्पिटल पर भी हमला, 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 20 मरीज जख्मी। जबालिया कैंप के हॉस्पिटल पर बमबारी, मुतादिद जख्मी होने की इत्तला। इजरायली फौज बैतुल-अहिया में इंडोनेशिया हॉस्पिटल के मरीजों को माल खाली करने पर मजबूर करने लगी। रफ़ा और देरुल बलाक में ड्रोन हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 45,338 हो गई। 1,07,774 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास की गज़ा में जवाबी कार्रवाइयाँ। इजरायली फौज ने 2 अफसरान और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक कर दी।